Students, so today we will learn the chapter acid, base, and salt. Yesterday, I have given some basic information regarding this chapter. Today, we will learn it line by line. You have learned in your previous classes that sour and bitter taste of food are due to acid and base. Wherever I have highlighted the lines with yellow color, you have got the line in your textbook. येलो कलर ની જે હાઇલાઇટ છે તમારા ટેક્સ્ટ ઉપર અંડરલાઇન કરવાની છે. Sour and bitter taste of food are due to acid and base respectively. Sour હોય તો તમારું કયું હશે? Acid, and bitter taste હોય તો base present in them. If someone in a family is suffering from a problem of acidity after overeating, આપણે કોઈ વાર વધારે ખાય તો શું થશે? Acidity after overeating. Which of the following would you suggest as a remedy? अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो एसिडिटी हो जाती है, तो क्या सजेस्ट करेंगे हम? तो एसिडिटी में ज्यादा एसिड मतलब एसिड रिलीज होता है, तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे? तो लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. हम क्या उसे सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. ठीक है, जो एसिडिटी में बेस का काम करेगा. Okay, you already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Underline in your textbook. Acids are sour in taste, खट्टा होता है, and change the color of blue litmus to red. Blue litmus पेपर क्या किसमें कन्वर्ट करेगा? रेड में. Bases are bitter and change the color of the red litmus paper blue. Litmus is a natural indicator. Bases क्या टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं. और change the color of red litmus paper to blue. रेड को क्या करेंगे? ब्लू पे कन्वर्ट करेंगे. Litmus is a natural indicator. Naturally litmus बनाया जा सकता है. Naturally एलिमेंट से litmus बनता है, तो उसे इसलिए बताया गया है नेचुरल इंडिकेटर. उसी तरह से क्या वो दूसरा है? टर्मरिक is another indicator. Here you have noticed that a stain of curry on the white cloth becomes reddish brown. अगर हमारा कोई टी शर्ट पे करी का दाग लग गया है व्हाइट क्लॉथ पे, उसे धुलने के बाद क्या हो जाता है? वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. जब सोप धुला जाता है तब, सोप के कांटेक्ट में आता है तब. Which is basic in nature. सोप कौन सा है? बेसिक इन नेचर होता है. तो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडिश ब्राउन कलर मतलब ब्लू. Is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. अगर फुल से ज्यादा धोएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. You can also use synthetic indicators. ये तो नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस पेपर, लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and base. तो उसी तरह से हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी है. आप इंटरनेट पे जाके इसका इमेजेस देख सकते हो. मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन. In this chapter we will study the reaction of acid and base. How acid and base cancel out each other's effect. ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शंस देखेंगे, और ये एक दूसरे को अगर मिक्स किया जाए तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल भी कर सकते हैं. And many other interesting things that we use
and see in our day-to-day life. Do you know का point है? Litmus solution is purple dye. पर्पल कलर होता है. लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? पर्पल डाई. Which is extracted from lichen. जो लील जैसा होता है lichen, उसमें से बनाया जाता है. A plant belonging to the division Helophyta and is commonly used as an indicator. Indicator के फॉर्म में यूज होता है. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. ठीक है. उसका कलर ऐसे जनरली क्या होता है? पर्पल होता है. There are many other natural materials like, और कौन से नेचुरल मटेरियल यूज हो सकते हैं? जैसे रेड कैबेज लीव्स होता है, अंडरलाइन इट. टर्मरिक यूज कर सकते हैं. कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर्स के पेटल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पेचूनिया एंड जेरेनियम. ठीक है, ये फ्लावर्स है सब, उसके पेटल्स हम नेचुरल इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं. Which indicate the presence of acid or base in a solution. सॉल्यूशन में एसिड, सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है, वो पता चल करने में यूज होता है, इंडिकेटर है. These are called acid base indicators. तो क्या बोला जाएगा? Acid base indicators और simple indicators. You have been provided with the test tube. One of them contains distilled water and the other two contains acidic solution and basic solution respectively. If you are given only one litmus paper, how will you identify the content of each test tube? तो अगर एसिड है, हमें लिटमस पेपर, हमें कौन सा दिया गया है? रेड लिटमस पेपर दिया गया है. चलो, तो रेड लिटमस पेपर है, मतलब जो बेसिक होगा वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर. एक में तो डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है. तो बेस में हम जब डालेंगे लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू. ब्लू. गुड. चलो, बाकी के दो है हमारे पास. ठीक है, तो एसिड में डालेंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट आएगा? एसिड में अगर रेड उस पर डालेंगे कुछ इफेक्ट आएगा? एसिड में यानी कि एसिड में क्या होता है लिटमस पेपर में? कलर चेंज नहीं થાય. कलर चेंज नहीं होगा. ठीक है. और बेस में क्या होगा? जैसे डिस्टिल वाटर है तो उसमें क्या होगा? कलर विल चेंज टू ब्लू. ब्लू तो नहीं, रेड का ब्लू तो बेसिक में हो गया. डिस्टिल वाटर तो न्यूट्रल है वो. पर्पल. पर्पल पॉसिबल. और उसको ज्यादा हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कि हम पे तीन चीजें हैं. ठीक है, ये बेसिक तो हमारा क्लियर हो गया. ठीक है ना? जैसे बेस तो हमारा क्लियर हो गया है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया. रेड लिटमस पेपर है ना, रेड लिटमस पेपर मतलब एसिड क्लियर हो जाता है हमारा. रेड लिटमस पेपर हमारे पास है तो एसिड क्या हो जाएगा हमारा? इसमें क्या हो गया? ब्लू. ओके. अब बेसिक एंड डिस्टिल्ड वाटर में प्रॉब्लम है. ठीक है ना? तो अब ये एसिड का अगर हम बेस में डालेंगे, ठीक है, एसिड
प्लस बेस, बेसिक, तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। ओके, तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट रहेगी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं इफेक्ट हो रहेगी। लेकिन इस तरफ अगर वाटर है हमारा, वाटर प्लस वाटर में हम डाल रहे हैं एसिड, ये वाला सॉल्यूशन, इसको यहाँ डाल रहे हैं एसिड। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिटमस पेपर रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स अगर रेड का रेड ही रख रहा है, क्लियर करना होगा। यहाँ पे हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, मतलब वाटर के साथ बेस मिक्स करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, वाटर में बेस मिक्स करें तो यहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू। तो वाटर प्लस बेस को मिक्स करके ब्लू कलर मिलेगा। ये तो एक तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। चलो फिर से समझा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे चलो फिर से हम समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ओके, तो ये बेसिक क्लियर हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि रेड लिटमस पेपर यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है ब्लू में। तो ये एक मिल गया हमें, ठीक है पहला। अभी क्या एसिड, तो एसिड तो डालेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, और डिस्टिल वाटर में भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगी, मतलब इस दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो बेस है उसको यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स करेंगे, जैसे बेस प्लस वाटर, तो ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो ब्लू होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, वाटर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया आपका, और बेस प्लस एसिड को मिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे बेस प्लस एसिड तो सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, मतलब कोई इफेक्ट आ नहीं रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। समझ में आ रहा है क्या? स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। देखो हमारे पास तीन सॉल्यूशन है, एक वाटर है, एक एसिड है, और एक बेसिक है। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो वो तो ब्लू हो जाएगा, मतलब एक पता चल गया बेसिक है। अब प्रॉब्लम क्या रहेगा, डिस्टिल वाटर या एसिडिक सॉल्यूशन, इन दोनों में रेड का रेड ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आने वाली। तो हम इन दोनों में अभी क्या करेंगे, तो इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो अगर बेस को एसिड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, जैसे ये बेस प्लस एसिड, तो वो क्या हो गया, सॉल्ट, मतलब न्यूट्रल हो गया। ठीक है, मतलब इस लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाली। लेकिन बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, यहाँ पे बेस प्लस वाटर, तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका, वाटर है, और जो दूसरा बचा वो क्या हो गया, एसिड हो गया। क्लियर? किसी को डाउट है अभी इसमें? No, sir. एनीबॉडी? नो सर। तो फिर से समझा देता हूँ, बेस जो है वो रेड को ब्लू करेगा, और एसिड प्लस बेस मिक्स करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और बेस प्लस वाटर मिक्स करेंगे तो वो भी सॉल्यूशन लिटमस को क्या करेगा, ब्लू करेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है हमारा,
Yes. तो क्या हो जाएगा आपका ये तो पता चल गया अभी तीनों में। चलो तो आप आपके नोट में भी लिख लो, यहाँ पे वाटर प्लस बेस प्लस करेंगे तो ब्लू कलर होगा उसका, और यहाँ पे एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? Understanding the chemical properties of acid and base, और acid and तो chemical property देखेंगे acid and base in a laboratory। तो यहाँ पे जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर सबके नेम एंड फॉर्मूला याद रखें। सब H वाले हैं इसमें, H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH वाले होते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलो अभी जो लिटमस पेपर है, तो इंडिकेटर और लिटमस पेपर इंडिकेटर्स ये एसिड बेस है, न्यूट्रल में जो रिएक्शन होता है वो दिखाया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बेसिक में नो चेंज, न्यूट्रल में नो चेंज। वैसे रेड लिटमस पेपर नो चेंज इन कलर एसिड, और बेसिक में ब्लू, और न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये दोनों को हम समझते हैं। मिथाइल ऑरेंज, इसमें ऑरेंज वर्ड दिया है, वो क्या है, तो वो एसिड सॉल्यूशन में क्या हो गया, रेड हो गया, रेड या पिंक। जैसे बेसिक सॉल्यूशन में येलो और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज हो जाता है। इसी तरह फिनोप्थलीन है, वो एसिड में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस। कैप्चर स्क्रीनशॉट, होमवर्क में लिख के दे देना है ये। क्लियर? समझ में आ गया? सैंपल में रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. स्टूडेंट्स, Yes, sir. और आई विल सेंड द फाइल। ओके, Yes. these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। कलर चेंज होता है, उससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। There are some substances whose odor changes। ऑर्डर मतलब क्या है, यहाँ पे स्मेल। इन एसिडिक और बेसिक मीडिया,
these are called olfactory indicators. स्मेल चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, इससे क्या बोलेंगे? olfactory indicators. जो स्मेल होता है, स्मेलिंग करते हैं हम, उससे जो चेंज पता चलेगा तो olfactory में आएगा वो। ठीक है, कलर चेंज वाले अलग होते हैं इंडिकेटर्स, और ऑर्डर चेंज होने वाले इंडिकेटर्स को olfactory indicators बोलेंगे। मतलब उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से वो एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है वो पता चलेगा। Which of these vanilla, onion and clove can be used as, चलो olfactory indicators में क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? वेनिला, अनियन एंड क्लोव can be used as olfactory indicators. ठीक है, olfactory indicators में आप वेनिला स्मेल, वेनिला यूज कर सकते हैं, उसका स्मेल चेंज होगा, अनियन और क्लोव को यूज कर सकते हैं। Okay, how do acid and base react with metal? एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमने लिया है जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जिंक लिया हुआ है यहाँ पे। चलो, वी हैव एसिड, मेटल में कौन सी मेटल है यहाँ पे? जिंक मेटल है। ठीक है, जिंक, और यहाँ पे एसिड कौन सा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जिंक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है अंदर। तो कौन सा गैस यहाँ पे निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस बबल। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब उसको चेक कैसे करेंगे? तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है वो यहाँ से जाके डिलीवरी ट्यूब से जाके यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये सोप सॉल्यूशन, यहाँ पे सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, इसमें अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ बर्निंग कैंडल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे कैंडल से, तो कैसे पॉप साउंड से वो जलेगा। इसी इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और उसको रिएक्ट करेंगे जिंक ग्रेन्यूल से, तो हमें मिल रहा है हाइड्रोजन गैस, और उसको बंद करके हम चेक कर सकते हैं। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms a compound called a salt. ठीक है, एसिड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, एंड सॉल्ट बनेगा दूसरा। यहाँ पे रिएक्शन दिया ही गया है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो एसिड प्लस मेटल किया है, यहाँ पे बेस प्लस मेटल एक एक्सपेरिमेंट किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक।
बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल, तो बी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स, सभी मेटल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को याद रखना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 plus H2, such reactions are not possible with all the metals, सभी बेस सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ज्यादातर एसिड प्लस मेटल में हाइड्रोजन गैस मिलता है। लेकिन यहाँ पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा, तो आपको इसको मेमोराइज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दिखाया गया है। सोडियम कार्बोनेट जैसे मेटल कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट लिया है, सोडियम मेटल है और कार्बोनेट मतलब CO3 हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर डालेंगे दो, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, सोडियम मेटल है और हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3। ठीक है, प्लस एसिड में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैस रिलीज हो रही है उसको कहां से पास करना है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करो। चलो, तो यहाँ पे हमें लिया क्या है, पहले सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये वाला आपका सोडियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और अंदर कौन सा क्या सॉल्यूशन डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर डाल रहे हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो एक गैस रिलीज हो रहा है और गैस यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, वो गैस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो गैस यहाँ पे आ रहा है वो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो रहा है, मतलब ये हमें देखना है। तो ये गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या होगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या है ये देखना है, पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब एक जो गैस आ रही है यहाँ पे, कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आपका ये, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से लिया, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो रिएक्ट क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले यहाँ का रिएक्शन देखेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट H2B दो में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जब CO3 होगा, आप शॉर्ट में याद रख सकते हो,
CO3 होता है तो ज्यादातर हमें क्या मिलता है यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। ठीक है, कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट वाले जो कंपाउंड है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी गेट सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द सेम वे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये जो रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देगा। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे, और वो जो है वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे, अंदर व्हाइट कलर का व्हाइट कलर दिखेगा आपको। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अभी क्या होता है। अगर ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, लेकिन अंदर हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, वी पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हियर, तो इट टर्न्स इनटू soluble in water, it turns into calcium bicarbonate या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो व्हाइट कलर हुआ था वो फिर से ट्रांसपेरेंट मतलब वाटर कलर हो जाएगा अगर ज्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे तो। यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर बन गया, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करते ही रहते हैं हम, तो इसके बाद ये रिएक्शन होगा, उसमें क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कलर दिखने लगेगा। तो वो क्या बन रहा है अभी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन सभी में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। तो ये याद रखना है हमें। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्स्ट एसिड को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, चलो ये सब लिख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोला जाएगा। और यहाँ पे याद रखना है मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।